Welcome to Physics Class 11th, Unit 1, Unit and Measurement, Chapter 2, Unit and Measurement. This is the fifth video of this chapter. In this video, we will discuss about significant figure, scientific notations, rounding of the digits, dimensional formula, application of dimensional analysis, limitation of dimensional formula. This video is basically depends upon notations and dimensional formula. So first topic of today's discussions is significant figures. Scientific figures, scientific digits means if we get the some certain type of readings, certain type of results, then we have some digits. So in digits, few digits are reliable and few are non-reliable. So or we can say uncertain. So we reported the result of measurement is a number include all the digits that are known reliable plus first digits of uncertain digits. This is called significant figures. For example, we have a result of 2.36 in a time period of simple pendulum. So here 2.36 in this 2 and 3 are the known, very known, but 6, this 6 digit is uncertain because this is least count of this clock is 0.01. So due to least count of 0.01, it conclude as 0.06. It may be 0.059, 0.061, 0.58, 0.58. So the last digit is not truly significant. It is not truly reliable. It is truly certain. So all the significant, all the certain digits plus first uncertain digits counted as significant figures. All the certain digits, all the certain digits plus first uncertain digits, because 2.36, 2 and 3 we know that 2.3 और 2.4 के बीच में है, तो 2.3 तो है ही, लेकिन 0.6 this is the just because of least count, because it's the instrument cannot measure beyond us this digit. So 2.36 is a significant figure. The definition of significant figure is all the reliable digits plus first uncertain digit is called significant figures. So in this 6 is uncertain. The length of an object measured by 287.5 centimeter. In this 287 is certain, but 0.5 maybe due to the least count of 0.1 it is reported as 0.5. It may be 0.48, it may be 0.47. So it is not certain, but it count as significant figure. So in this 4 significant figures are there. 287 plus 1, that is uncertain. A choice of change in different unit does not change the number of significant figures. If we convert length from meter to centimeter, centimeter to kilometer, the number of significant figure will not change. Now rules to determine the number of significant figures. How many significant figures are in our reading? So first of all, first and foremost rule is very famous or very common rule, that is all non-zero digits. If we get the non-zero digits, these all are the significant. So in this 22474, 179.245, 12345, 3.143. So these are the significant figures. Now if 0 between two non-zero digits, whether the number of zeros are as much, but the between the two non-zero digits, they are also counted as significant, like 22.0002, it means 30 between two non-zero digits. So total significant figures are 5. Whether it may be decimal or not, no problem, because they are starting and ended by non-zero digits. So these all are significant. So in this 7 significant digits are there. In the third example, there are the 4 significant figures. Rule number 3, if the number is less than 1, it means the decimal starts from 0.0. So the 0 on the right side of decimal but left side of first non-zero digits are not significant. Like as 0, because it's less than 0, so 0.000723. So there are only 3 significant figures. Here 0.09, only 1 significant figures. In this 0.00003172, only 4 significant figures are here. Rule number 4, a terminal or trailing zeros in a number without decimal
डेसिमल नहीं है और ट्रेलिंग जीरोज हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट्स नहीं होंगे। जैसे 20,000 ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5200 टू, 563 00000 only three significant figures are here. Rule number 5, it is a little bit point of concern because the trailing zeros with the decimal point are significant. And the difference between 4 and 5 is a decimal. If there is no decimal or no significant figures, if there is decimal, so 0 will also count as significant. So 20,000 have only one significant figures, but 2.0000 have 5 significant figures. 200.005, 230.04. So remember between decimal. So there is a little bit confusion between rule number 4 and 5. First is all non-zero are significant. Second, zero between non-zero are significant. Third, a zero before the non-zero are trailing before the decimal less than zero is non-zero. But zero after are non-zero without decimal are non-significant. But zero after with the decimal are significant. So in the examination example will come and you have to count the number of significant figures. Now next topic of lecture is scientific notation. Scientific notations we can write as 6.023 into 10 to 23. Why we write in this way? It means there is a one number, one decimal, and the one power of 10 raised to power, that is metric power. Like a 350 can be written as 3.5 times power 2, 35 times power 1, and 350 times power 0. So which should be likely to use, which is most scientific. So in this we know that a into 10 to the power b, where a is 8 times 10 raised by a power of b. It means 3 10 to the power 1 means 35 into 10. We can say 35 can be written in 10 times, that will be 350. So 35, that a can be written 8 times can be written by 10 to the power b. So where the exponent b is an integer, and it is a coefficient a is a real number, that is a significant, that is a mantissa. We will discuss in maths also in the common logarithmic. So after all, what is the result behind it? In these sets of options 3.5, 35, 350, we always choose that this first number should be greater than 1 but less than 10. This number should be less than 10 but more than 1. So it should not use as 0.35 or 35. It should be as 3.5 into 10 to the power 2. It is the scientific notation we use in every terms. That number with the power of 10. So the number should be greater than 1 but less than 10. So 350 like as that. 6.023 we know that. So this is for scientific notation. Now rule for arithmetic operation of significant figures. If we have significant figures like a 6.0, 6.00, and now we are using mathematical operations, like we are using we have to find the perimeter, area, volume. So we have to use some mathematical operations. So what will happen with significant figures? So in case of multiplication or division, we have to find, the rule is here, the final result should retain as many significant figures as there are original number with least significant figures. It means in multiplication, if there are 2 or 3 or as many numbers, firstly we have to find which number have least significant figures, and our answer will be justified in that only. Like there is an example of 2.14 of our exercise textbook. NCERT, 5.74 gram of substance occur 1.2 centimeter square. Express density. So density formula, mass upon volume. So here we have two figures. One is mass is carrying 3 significant figures, and volume carrying 2 significant figures. So our answer, whether it will come in as many as decimal, but we have to write in only 2 significant figures, because the volume have only 2 significant figures. So we have to write the answer in only 2 significant figures. So our answer will be 4.8 gram per cm cube. क्लियर? हमारे पास 10 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हम 10 में से देखेंगे किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फिर बाकी के जितने भी डिजिट्स आते हैं उनको हम राउंड ऑफ करने के बाद हम केवल उतने ही में आंसर चाहिए, चाहे डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के
बाद हो, but that digits cannot be increased by the least significant figures. This is for multiplication and division both. Now for addition and division, in this case we can count only decimal place value. The final result should retain as many decimal places, not significant decimal places, as the least decimal places. Yes, here is also the least, like is 5.14 plus 6.219 plus 3.2. So in these three numbers, this have only one decimal place, this have three decimal places, and this number have two decimal places. So our answer will come in least, that is only one decimal place. So our answer count 14.559 after addition. Now we are getting rounding off, so 9, it is since greater than 5, so it will increase the previous value by 1. Now it is a 2 decimal, but we want only 1 decimal, so once more we are rounding off, so it will be 14.6. So ध्यान रखना है, in addition and division least decimal place, in multiplication and division least significant figures. Now राउंडिंग ऑफ कैसे करना है? सो राउंडिंग ऑफ के जनरल रूल्स हैं. इफ डिजिट्स इज ड्रॉप्ड बाय ग्रेटर देन 5, अगर ग्रेटर देन 5 तभी हमें प्रीवियस डिजिट्स को 1 से बढ़ा देना है. अगर उससे कम है तो हमें प्रीवियस डिजिट को कोई भी चेंज नहीं करना है. जैसे हमारे नंबर्स आते हैं 5.25 मार्क्स तो 5 मान लेते हैं, लेकिन अगर हमारे 5.5 आए तो हम उसको 6 मानते हैं, या 5.75 है तो भी हम उसको 6 मानते हैं. तो यहाँ पर 5.5 मतलब अगर ड्रॉप्ड, अगर इफ़ देयर इज अ डेसिमल विच इज हैव अ 5, हमारे पास अगर 5 से बड़ा नंबर है तो देन प्रीवियस नंबर को 1 से बढ़ा दें. अगर 5 से छोटा है तो हम उसको ऐसे ड्रॉप करते हैं, प्रीवियस नंबर में कोई चीज़ नहीं आएगा. लेकिन अगर 5 ही है तो क्या करेंगे? देन अगर प्रीवियस नंबर इवन है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, अगर ऑड है तो उसको हम एक नंबर बढ़ा के इवन कर देंगे. मतलब 5.54 है या 5.55 है, तो 5.55 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 5.6 हो जाएगा, लेकिन 5.65 को करेंगे तो 5.6 ही रहेगा. तो दो राउंडिंग ऑफ डिजिट्स आए हमारे पास 5.5. अगर हमारे पास 5.5 है तो भी हम 5.65 है तो उसका जो सिग्निफिकेंट आएगा वो भी 5.6 आएगा, और अगर हमारे पास 5.55 है तो उसका भी 5.6 आएगा. यस और नो? हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक 5.5 और एक 5.55 और एक 5.65 है. दोनों को राउंड ऑफ करने पे, क्योंकि ये 6, अगर ये हम 5 हटा रहे हैं तो प्रीवियस इवन नंबर है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और 5.55 अगर हम इसका 5 को हटाते हैं तो प्रीवियस नंबर ऑड है तो उसको हम नेक्स्ट डिजिट पे लेंगे तो 5.65. दिस वी हैव टू रिमेंबर लिटिल बिट कि प्रीवियस नंबर अगर 5 को हटा रहे हैं तो प्रीवियस अगर इवन है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और अगर प्रीवियस अगर ऑड है तो उसको एक नंबर एक्सीड कर देंगे. Now, in an involved complex multi-step calculation, one should retain in intermediate steps one digit more than the significant digits. हम उसको एक नंबर से आगे बढ़ा देंगे राउंड ऑफ टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स. Now, our most concerned topic of the class 11th is dimensions. ये फॉर्मूला, ये टॉपिक्स आपके किसी भी कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं. और डायमेंशन मतलब आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है और डिराइव क्वांटिटी है, तो उनको कैसे हम रिलेट करते हैं, दैट इज डायमेंशन. डायमेंशन एक अलग वर्ड है. डायमेंशन 2 डायमेंशंस मतलब XYZ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन का मतलब है पावर, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. अगर हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी है, फंडामेंटल डिराइव्ड, तो डिराइव्ड को हम फंडामेंटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो वी हैव टू यूज सर्टेन टाइप ऑफ पावर, लाइक एरिया इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, सो L⁻². तो जैसे ही हम इसमें पावर लगाए देन इट इज डायमेंशन. सो डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट to which fundamental or base quantity are raised to represent that quantity. अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो हमें पावर लगानी पड़ेगी. तो जैसे हम कोई पावर लगाएंगे दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन. फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का फॉर्मूला A³ होता है या X³ होता है, तो L³ लेंथ. अगर हम लेते हैं फोर्स, तो फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, उसको और सॉल्व करेंगे तो mLT-2. हम उसके और जितने स्टेप्स हम उसके कट शॉर्ट कर सकते हैं, कट करते जाएंगे. फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, मास फंडामेंटल हो गई, एक्सेलरेशन को दोबारा करेंगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी को फिर से एक बार और करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमारे पास आएगा मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर. तो मास की पावर 1 हो गई, डिस्टेंस की पावर 1 हो गई, लेकिन टाइम की पावर अपॉन में टाइम स्क्वायर है तो T-2 हो गई.
सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। इसको तो बेसिकली याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा। MLT-2 एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता तो एक लेंथ और बढ़ जाएगी, तो ML2T-2। नाउ डायमेंशनल क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सी हैं? डायमेंशनल क्वांटिटी एज अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैज डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल स्पीड दैट। मतलब इसको हम यहाँ पे 4 टाइप से डायमेंशन क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, जिनके पास डायमेंशन है, जिसके पास डायमेंशंस नहीं है, और जो जिनकी फिक्स वैल्यू है और जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं है। तो डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल क्वांटिटी या डायमेंशनल वेरिएबल जिनकी फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन जिनके पास डायमेंशन तो है लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं है, दैट आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनल वेरिएबल विच हैव डायमेंशनल फार्मूला बट नो कांस्टेंट वैल्यू, लाइक एज फोर्स। फोर्स तो कितना भी हो सकता है, तो स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, मैक्सिमम चीज़ जो हम पढ़ते हैं, दीज आर डायमेंशनल वेरिएबल। सेकेंड होता है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब उनकी फिक्स वैल्यू भी नहीं है और डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं है। मतलब डायमेंशनल फार्मूला वहाँ कहीं ना कहीं प्योर इशू की वजह से कट गया, जैसे कि हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी 9th क्लास में, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो उस जगह पे फिर हमारे पास डायमेंशन भी नहीं बचती और कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल नॉन डायमेंशनल डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब कुछ हमारे पास ऐसे भी वर्ड हैं जो इनकी वैल्यू फिक्स होती है। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब ऐसे पैरामीटर जिनकी वैल्यू फिक्स है और डायमेंशनल फार्मूला भी है, जैसे स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू 9.8 फिक्स है और इसकी यूनिट भी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है स्टीफन कांस्टेंट, विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट हैं। मतलब उनका डायमेंशनल फार्मूला भी है और फिक्स वैल्यू भी है, देन दे आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। इसके बाद डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब उनके पास डायमेंशनल फार्मूला नहीं है लेकिन फिक्स वैल्यू जरूर है उनके पास। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 5 एक फिक्स वैल्यू है लेकिन उसका कोई यूनिट तो नहीं है। साइन थीटा, पाई, ई, एप्सिलॉन, इनकी वैल्यू तो है लेकिन इनकी कोई फिक्स डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। तो 4 कैटेगराइज हो गए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल और डायमेंशन और डायमेंशनलेस। नेक्स्ट, डायमेंशनल फार्मूला एंड इक्वेशंस। अगर हम किसी क्वांटिटी को किसी फार्मूले के फॉर्म में प्रेजेंट करें, जैसे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, तो MLT, जनरली हम इसको डायमेंशन जब भी हम लिखते हैं तो ब्रैकेट यूज़ करते हैं, बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और जो पावर हम जनरली लिखते हैं वो मैक्सिमम टाइम 90% हम ML और T की पावर लिखते हैं। तो एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे हम हमेशा जब भी डायमेंशन लिखेंगे, उसके अंदर हमारे पास मास होगा, M फॉर मास, L लेंथ होगी और T फॉर टेम्परेचर होगा। अब इनकी जो पावर होंगी ABC, जो भी पावर हो सकती है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो A, B और C ये जो पावर है, इन्हीं को डायमेंशंस बोलते हैं। और जब हम इस ब्रैकेट के तरीके से इसको लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिखते हैं, कैपिटल में ही लिखेंगे, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइमिंग और ABC इनकी पावर होगी। दीज आर कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। और अगर हम किसी से इक्वेट करते तो ये इक्वेशन भी बन सकता है, इक्वेट कर दें, जिसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड हो। तो जैसे कि ये तो फॉर्मूले होंगे स्पीड का, एक्सेलरेशन का, इक्वेशंस किसी फॉर्म में होगा, जैसे कि मास वेलोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू L क्यूब, वेलोसिटी इक्वल टू LD-1 डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहाँ अपॉन आएगा वहाँ पावर -1 हो जाएगी, जहाँ अगर वो नहीं है फिर भी एक्सप्रेस करना है तो उसकी पावर 0 लगा देंगे। वेलोसिटी में मास का कोई रोल नहीं है तो m⁻0 हो गया, LT-1 हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो एक और यहाँ पे टाइम माइनस हो जाएगा, LT-2। नाउ कुछ फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, बेसिक्स फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, वो यहाँ पे हमारे पास डिस्कस्ड है। सिंपल वे में कोशिश की है, जहाँ अगर सेम है तो एक साथ भी लिख दिया है। सबसे पहले वेलोसिटी x अपॉन टी, तो मास तो है ही नहीं, तो m0 x मतलब लेंथ, t मतलब लेकिन अपॉन में है तो -1 यूनिट मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी में एक टाइम और कम हो गया, मतलब टाइम की पावर यहाँ पे -2 हो गई, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस फॉर्मूले में अगर हम एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले मास और मल्टीप्लाई कर दें, तो m की पावर यहाँ 0 थी और यहाँ m की पावर एक और ऐड हो गई, तो m⁻1 हो गया। तो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यूनिट इसकी न्यूटन होती है, ऐसा यूनिट हमेशा एक ही होगी, न्यूटन। नाउ
मोमेंटम और इम्पल्स दोनों के फॉर्मूले एक ही होते तो एक साथ ही लिखे गए हैं। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू एम इंटू वी और इम्पल्स का फॉर्मूला F इंटू डेल टी। दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास फॉर्मूला आएगा MLT माइनस 1। टॉर्क, वर्क और एनर्जी, इन तीनों के फॉर्मूले एक ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूले अलग अलग हैं। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क पढ़ेंगे हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, फोर्स इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में, तो ये भी वही आएगा। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी वही आएगा। एनर्जी इज इक्वल टू डू वर्क, वो भी सेम फॉर्मूला होगा। इनमें से यूनिट्स क्या होगी, टॉर्क की बस यूनिट डिफरेंट है, न्यूटन मीटर, बाकी इनकी जूल होती है। नाउ पावर, पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का जो फॉर्मूला था इसमें अपॉन टाइम कर दें तो एक टाइम और माइनस कर दें तो -3 हो जाएगा। तो हम एक से दूसरे को बनाना सीख जाएंगे तो ज़्यादा ईजी आएगा। हम याद ना करें, हम फोर्स का याद कर लें, फोर्स से हम वर्क, एनर्जी, पावर कुछ भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो डेंस मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स L⁻⁻3, टाइम है नहीं तो है T⁻0। नेक्स्ट एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, ये चारों डायमेंशन लेस वेरिएबल है। ये चारों एग्जाम्पल हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल के, लेकिन इनमें से केवल एक एंगल है, पूरे केवल एंगल ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है फिर भी इसकी यूनिट होती है। आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ से लेंथ कट जाएगा लेकिन इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड से स्पीड कट गया, नो यूनिट, नो डायमेंशन, बिकॉज M0 L0 T0 आएगा। स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये हम इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, कैंसिल, नो डायमेंशन, नो यूनिट। तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास नॉन डायमेंशनल वेरिएबल के। नाउ स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला है, फॉर्मूले अलग हैं। स्ट्रेस का रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है, यूनिट भी एक ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इक्वल टू mr², m मीन्स मास, r मीन्स लेंथ स्क्वायर, सो ml2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है, M0 L0 T-1। फ्रीक्वेंसी 1/T, एंगुलर वेलोसिटी del थीटा अपॉन del t, वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अगर इन तीनों को सबको सॉल्व करोगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, M0 L0 T-1। सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, M L0 T-2। स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स अपॉन एक्सटेंशन, सेम फार्मूला, M L0 T-2। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन एरिया, सेम फार्मूला, M L0 T-2। तो इन तीनों का भी सेम डायमेंशन फार्मूला हो गया। एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल टू I ओमेगा, प्लैंक कांस्टेंट H इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सेम डायमेंशन फार्मूला। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इक्वल टू, बिकॉज ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगली बुक में ही मिलेगा ये हमें, ML-1 T-1। लेटेंट हीट, Q अपॉन M, M0 L2 T-2। स्पेसिफिक हीट, Q इक्वल टू MC del T, हमारे पास फॉर्मूला है उससे हमने ये निकाला है। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसके अलावा 4 फॉर्मूले और हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इतने फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद करते जाने हैं, इतने तो हमें कम से कम यूज़फुल है। बाकी के इस मॉड्यूल के लास्ट में आपको करीब 100 से ओवर फॉर्मूले की चार्ट दिया है, जितने आप याद कर लें उतना बेटर है, लेकिन इतने फॉर्मूले 34 फॉर्मूले तो आपको 11th में याद करने पड़ेंगे किसी न किसी तरीके से। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, M-1 L3 T-2, याद होना चाहिए। निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R², तो G इक्वल टू F R² अपॉन M1 M2, उससे निकाल दिया। अगर गैस कांस्टेंट तो PV इक्वल टू RT, तो R इक्वल टू PV अपॉन T। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू H इक्वल टू K इंटू T। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और याद भी कर सकते हो। नाउ हमने इतना सब क्यों किया, डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, तो क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके लिए एक टेबल और बना दी, इससे आप सेट्स याद कर सकते हो किसके सेम है डायमेंशनल फॉर्मूले। उसी टेबल को हमने एक सिंपल चार्ट में शो कर दिया कि इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, हर लाइन का केवल एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला है। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल
फॉर्मूला। यूज़ क्या है इसका? तो इसके 3 मेन यूज़ है। पहला, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई हमारे पास इक्वेशन मिल जाए, बता सकता है कि वो करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन डायमेंशनली कुछ उसके लिमिटेशंस भी होंगी। टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, आप सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल सकते हो, न्यूटन को डायन में बदल सकते हो। टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, अगर 2 से ज़्यादा ऐसी क्वांटिटी जिनमें कोई रिलेशन बन सकता है तो ये उसको चेक भी करके बता सकता है। तो इन्हीं तीनों को देखते हैं, यही हमारा मेन टॉपिक है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। मतलब इसके लिए एक हमारे पास लॉ है, एक फॉर्म प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। जैसे आप मास में मास ही ऐड कर सकते हो, मास में आप टाइम ऐड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई तो आप किसी को भी किसी में कर सकते हो, लेकिन अगर आप मास में ऐड करना चाहते हो, मास से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो मास ही होना चाहिए। लेंथ में अगर आप ऐड करना चाहते हो लेंथ ही होना चाहिए। फोर्स में अगर आप ऐड करना चाह रहे हो या इक्वेट करना चाह रहे हो या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो वो फोर्स ही होना चाहिए। और कोई 2 स्टेप्स मल्टीप्लाई में भी हैं तो भी उसी स्टेप्स में ही जो सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाले स्टेप्स ही मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट होंगे। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द फिजिकल क्वांटिटी और स्टेप्स of physical quantity may be added together or subtract from one another only if they have same dimensional formula। क्लियर है? लेंथ से लेंथ ही माइनस होगी, लेंथ से लेंथ ही प्लस होगी, लेंथ से वेलोसिटी तो प्लस हो नहीं जाएगी, लेंथ से वेलोसिटी माइनस तो हो नहीं जाएगी, फोर्स में आप मास तो ऐड कर नहीं दोगे। ठीक है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, ऐड और इक्वेट स्टेप्स और फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, और यही हमारा यहाँ पे लीड रूल है। सो ना फर्स्ट, जैसे एग्जांपल वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होती है, फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा, मोमेंटम तो ऐड हो नहीं जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, टू चेक द करेक्टनेस of this equation, this is the famous third equation of motion, v square equal to u square plus 2as, ये सही है कि नहीं हम चेक करना चाहते हैं डायमेंशनली। तो हमारे पास इसमें कितने स्टेप्स हैं? तो स्टेप डिसाइड होते हैं प्लस माइनस और इक्वल से। मल्टीप्लाई में स्टेप्स चेंज नहीं होते, ये 2as एक ही स्टेप है, लेकिन जहाँ प्लस आ गया तो ये 2 स्टेप हो गए, ये इक्वल आ गया मतलब ये एक और स्टेप हो गया। तो यहाँ 3 स्टेप्स हैं, अगर इन तीनों स्टेप्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ जाते हैं तो ये बिल्कुल सही है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से वर्ड यूज हो रहा है वो देख लेते हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी m0 lt माइनस 1, v ये फाइनल वेलोसिटी m0 lt माइनस 1, a m0 lt माइनस 2 और s डिस्टेंस m0 lt 0। इतने स्टेप्स हैं, लेकिन अब हमें इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं हम v स्क्वायर मतलब m0 lt माइनस 1 का स्क्वायर, u स्क्वायर मीन्स m0 lt माइनस 1 का स्क्वायर प्लस टू तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ए मीन्स m0 lt माइनस 2 इसको रख दिया, इंटू एस मीन्स m0 lt 0 रख दिया। अब यहाँ स्क्वायर टू स्क्वायर पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो ये आ गया m0 l2 t माइनस 2। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 0 इंटू 2 0 होगा, इसकी पावर कुछ नहीं दिख रही 1 है तो 1 इंटू 2 2 होगा, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 होगा। यहाँ पे फिर वही होगा 0 2 और माइनस 2। और मल्टीप्लाई में पावर बेस सेम होता है तो ऐड होती है, तो m की पावर 0 प्लस 0 0 हो गया, l की पावर 1 प्लस 1 2 हो गया, t की पावर माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 हो गया। अब हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, इक्वल प्लस इक्वल। तो तीनों स्टेप्स में देखते हैं, m की पावर 0 यहाँ भी 0 यहाँ पे भी 0, l की पावर यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है, t की पावर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, मतलब तीनों स्टेप्स की डायमेंशन सेम है। अगर तीनों स्टेप्स की डायमेंशन सेम आती है इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अगर एक भी स्टेप की डायमेंशन चेंज आ जाती है तो फिर डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, mg पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। जनरली एनर्जी से एनर्जी सेम होना चाहिए, चेक करके देखते हैं। सो एम वी ये हमारे पास है टूल किट होगी, जो हमें यहाँ चाहिए पड़ेगा। जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m0 lt माइनस 2 होता है, चाहे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो चाहे कोई भी हो। h हाइट है यहाँ पे तो m0 lt 0। नाउ वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई, पहले तो हम ये स्क्वायर कर देते हो m0 l2 t माइनस 2, और यहाँ मल्टीप्लाई है, तीनों का मल्टीप्लाई है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 2 होगी और यहाँ 0 तो 2 और t की पावर माइनस 2।
और यहाँ हम देखेंगे m की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो m की पावर 1, l की पावर 0 1 1 तो 2 हो गया, t की पावर 0 -2 0 -2 हो गया। दोनों की पावर सेम आ रही है, m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, l की पावर 2 है, यहाँ है, t की पावर -2 है यहाँ पे। अगर पावर सेम है तीनों की एग्जैक्ट, देन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। एक एग्जाम्पल यही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन 2.15, ये एनसीईआरटी में सॉल्व करके दिखाया गया। नाउ एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हो सकता है कुछ सही हो कुछ गलत हो। के काइनेटिक एनर्जी के लिए शो किया गया है यहाँ पे, एम मास, वी वेलोसिटी के लिए शो किया गया है। बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। डायमेंशनली हो सकता है ये कांस्टेंट गलत लिखे हो। फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, के इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो के यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज एनर्जी, तो एनर्जी मतलब mL2T-2, एनर्जी का फॉर्मूला होता है डायमेंशनल। अब हमें देखना है, इन सब के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। पहले फोर्स का कर लें, फिर फोर्स से वेलोसिटी निकाल दें हम, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो के का फॉर्मूला तो mL2T-2 हो गया। अब एम स्क्वायर और वी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एम मतलब मास, तो एम स्क्वायर, और वी वेलोसिटी LT-1 का स्क्वायर, तो एम की पावर 2, एल की पावर 2 और टी की पावर -2। अब देखते हैं इन दोनों की डायमेंशंस में, एल की पावर तो सेम है, दोनों जगह 2 है, टी की पावर -2 है, दोनों जगह सेम है, लेकिन एम की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, मतलब एम की पावर सेम नहीं है दोनों में। तो सिंस द डायमेंशन ऑफ बोथ स्टेप्स आर नॉट सेम, सो इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर 2 है, डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो k का फॉर्मूला तो mL2T-2 हो गया, हाफ डायमेंशनल कांस्टेंट है, m रख दिया, और v मतलब LT-1 का स्क्वायर रख दिया। स्क्वायर पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, तो L स्क्वायर T-2, तो m L स्क्वायर T-2, तो ये तो साइज सेम लग रहा है, तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। थर्ड देखते हैं, सी वाला, k इक्वल टू एम ए। के का फॉर्मूला तो mL2T-2, m मास, a एक्सलेरेशन, LT-2, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं m की पावर तो 1 है, l की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, एक भी गलत हुआ तो सब कुछ गलत हो गया, सो इट इज नॉट करेक्ट। डी वाला देखते हैं, k इक्वल टू सेम, लेकिन यहाँ पर 3/16 mv स्क्वायर, 3/16 से हमें कोई मतलब नहीं, m रखा और v रखा, v स्क्वायर किया तो फिर ये भी सेम आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो, डायमेंशनली करेक्ट है ये। ई वाले में देखते हैं, तीन स्टेप है इसमें, 1 2 3। इसमें से देखते हैं फर्स्ट का mL2-2 है, mL2T-2 है, सेकेंड हाफ एम वी स्क्वायर का mL2T-2 है, लेकिन एम ए का सेम नहीं है, mL2 है। तो तीन स्टेप में से दो के तो सेम है, तीसरे का गलत है, वो भी केवल एक ही गलत है, लेकिन अगर एक भी स्टेप गलत है तो इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट। तो इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी डायमेंशंस करेक्ट है, किसकी नहीं है। नाउ सेकंड यूज ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, CGS, FPS, SI और एनी अदर सिस्टम गिवन कंडीशनल सिस्टम। सो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कन्वर्जन फॉर्मूला, हमने पढ़ा है N1U1 इक्वल टू N2U2। तो U1 मतलब mLT की कोई पावर होगी, और U2 मतलब mLT की वही पावर होगी, लेकिन यहाँ पे मास हो सकता है यहाँ किलोग्राम में हो, या हो सकता है ग्राम में हो। तो पावर तो सेम है, ABC यहाँ पे पावर दोनों जगह सेम है। फोर्स चाहे SI यूनिट में हो चाहे CGS यूनिट में हो, उसकी यूनिट सेम रहेगी, उसके डायमेंशन सेम रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पे हो सकता है किलोग्राम में हो या हो सकता है ग्राम में हो, लेकिन पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर जैसे हम मास को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भले ही यहाँ पे 1 था, यहाँ 1000 आ जाएगा, तो N1 N2 चेंज होंगे, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। तो इसको जब हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते तो N2 इक्वल टू N1, M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C। 1 जो सिस्टम दिया है, 2 जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले सेट करना है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पर, तो जूल इज ए फिजिकल क्वांटिटी वर्क का है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, mL2T-2 होता है। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप किस से किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम जूल SI यूनिट है, अर्ग CGS यूनिट है, तो सिस्टम 1 है SI और सिस्टम 2 है CGS।
ये भी कंफर्म हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया n2 इक्वल टू n1 m/m2 पावर a, L1/L2 पावर b और T1/T2 पावर c। तो देखिए a यहाँ पे हो गया, m की पावर यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे हो गया, l की पावर यहाँ 2 है, और c यहाँ पे हो गया t की पावर -2 है। तो ABC डिसाइड हो गए। और 1 सिस्टम SI है, मतलब मास SI में किलोग्राम, SI में लेंथ मीटर, SI में टाइम सेकंड, और सेकंड सिस्टम यहाँ CGS है, तो M2 यहाँ पे ग्राम आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा और यहाँ सेकंड आएगा। रख देते हैं हम। तो किलोग्राम को जैसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकंड से कट करने के बाद और पावर एडजस्ट करने के बाद हमारे पास बचेगा 1000, 100 की पावर 2, 1 की पावर -2, तो 10⁻⁷। सो इट मीन्स 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। एक न्यूमेरिकल हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। इसके लिए फिर हमें देखना है न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mL/T-2। के सिस्टम कौन सा है न्यूटन का, SI। डाइन किस सिस्टम की यूनिट है, CGS। फॉर्मूला n2 इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगा दिया। a यहाँ पे हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो ABC डिसाइड हो गए। फर्स्ट सिस्टम SI है तो यहाँ ऊपर किलोग्राम, मीटर और सेकंड आएगा। सेकंड यहाँ CGS है तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आएगा। कन्वर्ट किया किलोग्राम को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर और सेकंड को सेकंड। तो यहाँ पर 10⁻3, 10⁻2 और 1, दैट इज 10⁻5 डाइन। थर्ड, फिर से हमें पूछा जा सकता है न्यूटन को किसी स्पेसिफिक सिस्टम, यहाँ बोल दिया उन्होंने वेयर मास इज मेजर्ड इन mg, मिलीग्राम में मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ को किलोमीटर में, मे बी नॉट स्पेसिफाइड सिस्टम, इट इज़ गिवन कंडीशनल सिस्टम। सो लेंथ इज इन किलोमीटर एंड टाइम इज इन मिनट। आप कन्वर्ट करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल क्वांटिटी किसकी है, न्यूटन, फोर्स की। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mL/T-2। कन्वर्ट क्या है, फर्स्ट सिस्टम तो SI है, ये तो डिसाइडेड है। सेकेंड ये प्री डिफाइंड नहीं है, नॉट प्री डिफाइंड सिस्टम है। चलो ठीक है, जो होगा हम उसको मानेंगे। फॉर्मूला लिख लिया, n2 इक्वल टू n1 m1/m2 पावर a, L1/L2 पावर b, T1/T2 पावर c। ABC डिसाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला, m पावर 1 मीन्स a इक्वल टू 1, L पावर 1 मीन्स b इक्वल टू 1, T पावर -2 इट मीन्स c इक्वल टू -2। अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो n2 इक्वल टू 1, m1 पहला सिस्टम किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ लिखा हुआ है मास इज मेजर्ड इन मिलीग्राम, तो 1 किलोग्राम में, SI में यहाँ किलोग्राम था, किलोग्राम में कितने मिलीग्राम हो गए, तो 10⁻6 मिलीग्राम हो गए, अपॉन मिलीग्राम ही लिखा है। यहाँ पर था मीटर, हम इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, किलोमीटर में, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 10⁻3 लिखते तो 100, ये हो गया 1/1000 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर, क्योंकि यहाँ लिखा है किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा है। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर, और ये सिस्टम तो किलोमीटर में चार्ज मांगता ही है। तो यहाँ मीटर था, मीटर को लिख दिया 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है लेंथ को किलोमीटर में। और अब सेकंड, तो यहाँ तो सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है, T2 सिस्टम तो सेकंड है। T1 यहाँ पे क्या लिखा है, मिनट में, तो 1 सेकंड में मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1/60 सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 10⁻6, ये 10⁻³ और ये 60⁻²। सॉल्व करने पे आएगा 3.6 इंटू 10⁻6, इट मीन्स 1 न्यूटन इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 मिलीग्राम किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो इस तरीके से कोई भी सिस्टम आपसे दिया जाए, आपको डिसाइड करना है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा है, किससे किस में कन्वर्ट कर रहा है, और ABC की पावर डिसाइड करनी है और वैल्यू रख देनी है, जस्ट सिंप्लीफाइड कर देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है NCERT का। 1G यहाँ पे है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन CGS सिस्टम। तो फिजिकल क्वांटिटी होगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला इसका उस टेबल से देख के याद करना पड़ेगा, या आप फॉर्मूले भी निकाल सकते हो। m-1 L3T-2 होता है, किससे किस में कन्वर्ट करना है, CGS to SI इंटू CGS सिस्टम लिखा हुआ है, सॉरी SI to CGS। नाउ फॉर्मूला लगाया हमने, n1 की वैल्यू यहाँ पे अब 1 नहीं है, कितनी है, 6.67 10⁻11 जो G की वैल्यू है, और m1 SI to CGS, तो ऊपर किलोग्राम वाली, किलोग्राम मीटर सेकंड, नीचे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया 10⁻3, मीटर को सेंटीमीटर में 10⁻2,
अब इस पावर को अगर हम देखें तो 1/1000 कर देगी इसको। इन पावर को ध्यान रखना है, -1 की पावर है यहाँ पर, यहाँ 3 की पावर कोई दिक्कत नहीं करेगा, यहाँ तो कोई 1 से 1 सब कट हो जाना है। तो अब यहाँ पर जो बचा रहेगा 6.67 ×-11, ये 10⁻³ होगा क्योंकि 10⁻1 की पावर है। बाकी इसको शॉर्ट करने पर ये 10⁻3 × 2 6 हो जाएगा, 6 - 3 बचा रहेगा, और 3 11 में ऐड होगा तो -8। इट मीन्स इसको हम डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या ग्राम इनवर्स डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड पर डाइन, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन का डाइन, न्यूटन मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर का ग्राम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और या फिर हम इस डायमेंशन फॉर्मूले से मास की यूनिट ग्राम इनवर्स, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम की यूनिट सेकंड इनवर्स -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो कोफिशिएंट दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के फॉर्मूले से, और दूसरा ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड -2 के फॉर्मूले से। नाउ नेक्स्ट, थर्ड यूज, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। कोई दो फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं मालूम है कोई रिलेशन है भी कि नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि रिलेशन है तो हम उनको भी निकाल सकते हैं। ये मोस्ट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। इसका प्रैक्टिस भी आपके कोर्स में। ऑसिलेट अंडर एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। अब यहाँ से आ गया, क्या डिपेंड कर रहा है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ, मास ऑफ बॉब, acceleration due to gravity. Derive the expression for the time period using the method of dimensions. तो अब डिपेंडेंसी टाइम पीरियड ये किस किस पे है? लेंथ पे, ग्रेविटी पे और मास पे। हो सकती है हो भी और नहीं भी हो, हमें तो जो बोला गया हम वो मान के चलते हैं। अब मान लेते हैं T प्रोपोर्शनल टू L पावर A, M पावर B या Z पावर C, या फिर XYZ भी मान सकते हैं। तो T इक्वल टू, जैसे हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा K, कांस्टेंट होगा, डायमेंशन लेस होगा। L पावर X मान लिया, M पावर Y मान लिया, G पावर Z मान लिया। अब K डायमेंशन लेस है तो इसको हम वैसे ही हटा सकते हैं। अब हम इनको रखते हैं वैल्यूज़ में। तो पहले हम डायमेंशन फॉर्मूले देख रहे थे, किस किस के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं? मास का, लेंथ का, ग्रेविटी का, टाइम का। अब इन सबको हम रख के देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है T इक्वल टू K L रिस्ट पावर X, M रिस्ट पावर Y और Z रिस्ट पावर C में, Z में। तो T मतलब टाइम पीरियड, तो M0 L0 T हो गया। T का डायमेंशन फॉर्मूला है M0 L0 T इक्वल टू, इस पर कोई पावर तो है नहीं, K की कोई डायमेंशन होती नहीं है। L मीन्स लेंथ, तो M0 L T0, M0 L T0 पावर X नहीं मालूम कितनी है। फिर मास का डायमेंशन फॉर्मूला M L0 T0, M L0 T0 पावर Y, और G एक्सेलरेशन का फॉर्मूला M0 L T-2, तो M0 L T-2 पावर Z। नाउ मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए यहाँ पे L 0 0 होते तो इसमें तो 0 × 0 हो जाएगा, लेकिन L रिस्ट पावर X बचा रहेगा। यहाँ पे M रिस्ट पावर Y बचा रहेगा, और यहाँ पे दो बचे रहेंगे, L रिस्ट पावर Z और T रिस्ट पावर -2Z। और इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो M की पावर केवल यहाँ नहीं है, यहाँ है M रिस्ट पावर Y, और यहाँ नहीं है तो M की पावर Y हो गया। L की पावर यहाँ पे है X, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है Z, तो X प्लस Z हो गया। T की पावर 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे -2Z, तो तीनों पावर आ गई। अब अगर ये दोनों सेम है, इक्वेट सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते जब सेम होते, तो इक्वेट करते तो M की पावर यहाँ 0 है तो Y इक्वल टू क्या हो गया? 0। फिर L की पावर यहाँ X प्लस Z है और यहाँ L की पावर 0 है तो X प्लस Z इक्वल टू क्या हो गया? 0। फिर T की पावर -2Z है और T की पावर यहाँ कितनी है? 1, तो Z इक्वल टू यहाँ पहले तो Y की वैल्यू फिक्स हो गई, 0 हो गई, और यहाँ X इक्वल टू -Z आ जाएगा और Z इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो Z इक्वल टू -1/2 आया तो X इक्वल टू +1/2 हो जाएगा। तो तीनों पावर मिल गई। अब हम इसको, इन तीनों को हम इसमें रख सकते हैं। तो जैसे हम रखेंगे तो T इक्वल टू K, M की पावर तो X, Y किसकी पावर थी? Y थी M की पावर, M तो गायब हो गया, 0 हो गया। किसी की पावर 0 कर देते 1 हो जाता है, तो M तो गायब हो गया, केवल L और G बचे। L की पावर क्या थी? X कितना आया? 1/2, तो L रिस्ट पावर 1/2 लिख दिया। G की पावर कितनी आई? -1/2, तो K
L⁻1/2 G⁻⁻1/2। 1/2 को हम रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो k है इसको हमने मैथमेटिकली या प्रैक्टिकली निकाला है, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई। सो जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया t = 2 पाई रूट L/G। फेमस फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, बहुत जगह यूज होगा, तो इसको याद भी रखना है, t = 2 पाई रूट L/G। नाउ डीमेरिट्स क्या हैं? कुछ इतने सारे यूज हैं, कुछ तो इसकी लिमिटेशंस भी होंगे। डीमेरिट्स ना लिमिटेशंस बोल सकते हैं, ये केवल डायमेंशंस के साथ यूज हो सकती है, नॉन डायमेंशन को तो पता ही नहीं है इसके लिए। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, जिनके डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते उसके बारे में इसका कोई जजमेंट नहीं है, वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। साइन को भी इसको ये पता नहीं कर सकता कि बीच में प्लस का साइन आना चाहिए कि माइनस का साइन आना चाहिए। ओनली डायमेंशन कंसिस्टेंसी, नॉट द फिजिकल कंसिस्टेंसी टेस्टेड। Dimensions can be formed from the physical quantity, but physical quantity cannot be guessed from dimension because two or more हो सकता है फोर्स, जैसे मैंने बताया था टॉर्क और वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो जहाँ सेम डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वर्क और एनर्जी क्या लिखना है, वर्क लिखना है कि एनर्जी लिखना है कि टॉर्क लिखना है, क्योंकि तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं। फ्रीक्वेंसी का भी वही होता है और एंगुलर वेलोसिटी का भी वही होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है। सबसे पहला तो ये है कि ये केवल डायमेंशंस को ही बता सकता है, नॉन डायमेंशन को नहीं बता सकता है। 2 पाई है कि 4 पाई है नहीं मालूम। दूसरा प्लस माइनस को भी ये नहीं बता सकता है। तीसरा केवल ये कंसिस्टेंसी चेक कर सकता है। फिर द इक्वेशन कंटेन डिपेंडेंसी ऑफ 3, इसके जो मैक्सिमम यूज है MLT पे ही है, अगर कुछ और मिलते तो हम वहाँ पर फिर थोड़े से डिफिकल्टी फेस करते या नहीं, उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। कभी कभी 4 डिपेंडेंसी मिल जाती है तो फिर हमें 4 इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। अगर 5 डिपेंडेंसी होगी तो हम 5 इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो वहाँ पर डिफिकल्टी फेस करती है। और इक्वेशन कंटेन एक्सपोनेंट मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए, लॉगरिथम मिल जाए, तो फिर इसको डिराइव्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल डायमेंशनल फॉर्मूले को ही चेक करता है। इक्वेशन हैविंग रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट कोशेंट कैन नॉट बी, ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड को तो चेक कर सकता है, दूसरे कोशेंट फॉर्म में अगर आपको मिल जाता है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो फिर इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। ये टेबल्स है जो आपके बुक के पीछे बनी हुई है, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, आप इनको देख सकते हैं। मैंने बोला 34 आपको क्लास 11th के लिए याद करना ही है। इसके अलावा ये आपके फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले हैं, मैचिंग भी होंगे इनमें से। ये मैकेनिक्स के फॉर्मूले हैं, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स। मैकेनिक्स के ग्रेविटेशन के फॉर्मूले हैं ये। कुछ फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले हैं, एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों हम पहले डिस्कस कर चुके। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कुछ है, इसमें से हम इलास्टिसिटी देख चुके हैं, सरफेस टेंशन देख चुके हैं, सरफेस एनर्जी देख चुके हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन देख चुके हैं। हीट, इसमें हम हीट, लेटेंट हीट देख चुके हैं, स्पेसिफिक हीट देख चुके हैं। तो जो मेन फॉर्मूले वो हम पहले लिख चुके हैं, स्टीफन्स फार्मूला भी देख चुके हैं। हीट के और भी फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 में मिलेगी, इसके फॉर्मूले हैं, एक आप रेफरल के लिए रख सकते हैं। मैग्नेटिज्म के भी डायमेंशन फॉर्मूले, आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी को आप तोड़ सकते हैं। ऑप्टिक्स, म्यू डायमेंशन लेस होता है, ये भी फॉर्मूले हैं। प्लैंक कांस्टेंट, वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट,